عوامی ایکشن کمیٹی ابھی انتخابات نہیں چاہتی کیونکہ اپنی سیاسی حیثیت 1 سال میں اور منوانا چاہیں گے. مہاجر سیٹیں ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں، وہ بھی ان کی فتح ہے. یہ ون ون فارمولا ہوا. پیپلز پارٹی کی لڑائی ایک جعلی لڑائی. لوگ جو ہیں اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. لوگ سمجھ رہے ہیں پیپلز پارٹی صرف اپنا ریٹ بڑھا رہی ہے. مجھے لگتا ہے ایمل ولی خان بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا ووٹ بینک میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے. ایمل ولی خان اپنی ڈوبتی سیاست کو اینٹی آرمی سیاست کے ذریعے زندہ کرنا چاہتے ہیں. ایمل ولی خان کے پاس رشوت کا گھر ہے جو انہیں سیاسی رشوت کے طور پہ دیا گیا ہے. السلام علیکم. مزمل سہروردی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان قرار ریاض اور ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل سہروردی. السلام علیکم مزمل صاحب، ویلکم ٹو دا ولاگ. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک، اللہ پاک کا شکر ہے. اور ہمارے ناظرین بھی خیر عافیت سے ہوں گے. تو مزمل صاحب ولاگ کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے آزاد کشمیر کی. تو عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات جو ہیں وہ مان لیے گئے ہیں. تو کیا اب کشمیر کو فوری انتخابات کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں اس معاہدے میں نئے انتخابات بھی شامل ہونے چاہیے تھے، اور مجھے یہ نامکمل معاہدہ لگا کیونکہ اس میں نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہے. اور شاید عوامی ایکشن کمیٹی ابھی انتخابات نہیں چاہتی کیونکہ ابھی شاید وہ بطور سیاسی جماعت خود کو رجسٹر کرانا چاہیں گے، اپنی سیاسی حیثیت 1 سال میں اور منوانا چاہیں گے، اپنا کوئی سسٹم اور اپنا کوئی سٹرکچر بنانا چاہیں گے. ورنہ ملک آزاد کشمیر تو فوری انتخابات کا متقاضی ہے اس وقت. اور جو مہاجر سیٹیں ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں، وہ بھی ان کی فتح ہے. لیکن وہ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ون ون فارمولا ہوا. دیکھیں، بیسک لڑائی تو تھی 12 سیٹوں پر جو مہاجر سیٹیں ہیں جو پاکستان میں ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کی. عوامی ایکشن کمیٹی یہ سیٹیں ختم کرانا چاہتی تھی اور حکومت پاکستان، ریاست پاکستان یہ سیٹیں برقرار رکھنا چاہتی تھی. اب ہوا یہ ہے کہ نہ عوامی ایکشن کمیٹی جیتی ہے کہ یہ سیٹیں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں، نہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان جیت سکی ہے کہ یہ سیٹیں بحال بھی نہیں رہ سکی. نہ مکمل ختم ہوئی ہیں نہ مکمل بحال ہیں، یہ معطل ہو گئی ہیں، سسپینڈ ہو گئی ہیں. اور ایک 6 رکنی کمیٹی بن گئی ہے جس میں 2 بندے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہیں، 2 جو ہیں وہ آزاد کشمیر اسمبلی سے آئیں گے، حکومت سے آئیں گے، اور 2 پاکستان کے ہوں گے. تو یہ 6 لوگ مل کر جو 12 نشستیں ان کو ڈیسائیڈ کریں گے. اب یہ کب تک معطل رہتی ہیں، کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صرف 2 ووٹ ہیں لیکن ان کے پیچھے عوامی طاقت ہے. اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ دوبارہ کال دے سکتے ہیں. اور آزاد کشمیر کے 2 ممبر اور حکومت پاکستان کے 2 ممبر یہ تو چاروں چاہیں گے کہ یہ سیٹیں بحال رہیں. لیکن بہرحال ایک ریاست پاکستان نے ایک کم تر فتح پر ایک ون ون بات مان لی کہ چلو مکمل ختم نہ ہوں، آگے چل کر ڈیل کر لیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ ادھوری شکست ہے نہ ادھوری فتح ہے. نہ ان کو مکمل فتح ہوئی ہے نہ ان کو مکمل شکست ہوئی ہے. حکومت کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی مکمل فتح نہیں ملی ہے. لیکن اوور آل جو انہوں نے باتیں منوائی ہیں وہ آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود کی باتیں ہیں کہ وہ ایم آر آئی لگائیں، سی ٹی اسکین لگائیں، بلدیاتی انتخابات لگائیں، ٹنل بنائیں، یہ کریں. یہ جو باتیں ہیں یہ لوگوں کو بہت اپیل کریں گی اور اس سے ان کا پاپولر ووٹ بینک میرے خیال میں اضافہ ہوگا. تو ویسے تو میرے خیال میں حکومت پاکستان اور ریاست کو تو سوٹ کرتا ہے کہ آزاد کشمیر میں فوری انتخابات کرائے جائیں، لیکن شاید وہ بھی اس کا رسک نہیں لے رہے اور یہ بھی نہیں لے رہے. When it comes to پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این، تو پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما حسن مرتضیٰ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومتی اتحاد چھوڑنے پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے، جبکہ ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ پنجاب کا مسئلہ مریم نواز ہے. تو یہ لڑائی تو رکتی ہوئی نظر ہی نہیں آ رہی. دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی سمپل بات بتاؤں. پیپلز پارٹی کیا چھوڑ سکتی ہے؟ مرکز میں کیا شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد لا سکتی ہے؟ دیکھنے کی بات ہے نا. سب سے بڑا گیمبل ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ایک عدم اعتماد لے آئیں تحریک انصاف کے ساتھ مل کر قومی اسمبلی میں شہباز شریف کے خلاف اور شہباز شریف کی حکومت ختم کر دیں. کیا بلاول، آصف زرداری اور پیپلز پارٹی یہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا ہی سوال ہے جیسے ہم پی ٹی آئی سے کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں نا ہم نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں بیوقوف نہ بناؤ، دینا ہے تو کے پی اسمبلی توڑ کے دکھاؤ جو حکومت ہے آپ کے پاس. تو کیا شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد پیپلز پارٹی لا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں لا سکتی.
मेरे ख्याल में वो सिस्टम में इतना धंस चुके हैं, सदर भी उनके पास है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा उनके पास है, बलूचिस्तान की हुकूमत है, वो इस सिस्टम के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर वो ये कहते हैं कि वजीर आजम को हमने वोट दिया है, तो सदर को नून लीग के लोगों ने वोट नहीं दिया हुआ। अगर उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को वोट दिया हुआ है, तो चेयरमैन सेनेट को नून लीग ने वोट नहीं डाला हुआ। लिहाजा मुझे लगता है ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और पीपल्स पार्टी की लड़ाई एक जाली लड़ाई है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात होना होना बताऊं, कुछ नहीं है। यस, लोगों को पता है कि इन तिलों में तेल नहीं है, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकती, इनके लिए कुछ नहीं है, लिहाजा लोग इस लड़ाई को सीरियस नहीं ले रहे। मैंने बड़े लोगों से बात की है कि यार ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई हो रही है, बड़ी संजीदा। लोग आगे से हंस देते हैं, वो कहते नहीं एम ही पीपल पार्टी वाले अपना रेट बढ़ा रहे हैं, एम ही उनकी तो आदत है ब्लैकमेल करने की, कोई फंड चाहिए होंगे, कोई काम कराना होगा। लोगों की एक राय बन गई है पीपल्स पार्टी के बारे में कि वो ब्लैकमेल करके इस तरह तंग करके नून लीग से अपने नाजायज काम कराते हैं। तो मैंने बड़े लोगों से ये पब्लिक ओपिनियन लेने की कोशिश की है कि क्या लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई के बात को संजीदा ले रहे हैं। मैं आपको सीरियस बात बताऊं, लोग जो है इसको संजीदा नहीं ले रहे। लोग समझ रहे हैं पीपल्स पार्टी सिर्फ अपना रेट बढ़ा रही है और ये पीपल्स पार्टी की साख के लिए अच्छा नहीं है। देखिए ना, पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, वोट बैंक उनका एंटी पीएमएलएन ही होगा, लेकिन लड़ाई संजीदा लगनी चाहिए। मज़ाक़ खेज़ लड़ाई से वोट बैंक नहीं बनते, आप लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट बैंक नहीं बना सकते। या तो आप सिस्टम में हैं भी और लड़े भी जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? सिस्टम छोड़ के ही लड़ेंगे ना, जब लड़ेंगे। लोग आपकी लड़ाई को संजीदा नहीं ले रहे हैं, लोग इसको पीपल्स पार्टी का एक ड्रामा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बेवकूफ़ ना बनाएं, हमें पता है आप अंदर से। यानी टू कट शॉर्ट सबको समझ आ गई है कि कोई बात मनवानी होगी या ये महज हम्म, ड्रामा है, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हम्म। और पीपल्स पार्टी को पंजाब के हवाले से तो बहुत तहफ़्फ़ुज़ात पहले ही है ना। देखिए ना जी, ये पंजाब में 2-3 बार कमेटियाँ भी बनी हैं, कभी वज़ारतें माँगते हैं, कभी जिन ज़िलों से जीते हुए हैं वहाँ पे अपने अफ़सरों की तैनातियाँ चेक कराते हैं। जैसे मरियम ने कहा है कि मैं पंजाब में सियासी तैनातियाँ नहीं करती सिफ़ारिशों पर, तो पीपल्स पार्टी तो पंजाब में हिस्सा माँगती है ना। वो हिस्सा मरियम नवाज उसको नहीं दे रही, तो लोग फिर भी इस लड़ाई को संजीदा नहीं ले रहे। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे जायज हैं, लोग नहीं समझते, लोग कहते हैं ड्रामा कर रही है पीपल्स पार्टी। मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के अंदर सच्ची भी हो तो लोग नहीं मान रहे, लोग कह रहे झूठी है और ड्रामे कर लोग की कहते हैं तुसी झूठ बोलते हो। मुजफ्फर रही साहब, है। आगे बढ़कर बात करेंगे लफ्जी जंग की। तो वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और सेनेटर एमएल वली खान के दरमियान जो है वो लफ्जी जंग छिड़ गई है, ये क्या चल रहा है? देखें, एमएल वली खान साहब जो है ना, हम्म। वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में रहते हैं और वो मिनिस्टर नहीं है। हम्म। उनका इस्तेकाक नहीं है कि वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में रहें। वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में इसलिए रहते हैं कि उनको सिस्टम ने मराहत के तौर पे एक घर दिया है मिनिस्टर्स एनक्लेव में रहने के लिए। वो वफाकी वजीर वुज़रा की कॉलोनी में रहते हैं। हम्म। अब वो कहते हैं हुकूमत का मौक़िफ़ है कि एक तो हमने आपको घर दिया हुआ है, ऊपर से आप हमें आँखें भी दिखाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का भी ये मौक़िफ़ है कि एक तो हमने आपको रहने के लिए मिनिस्टर एनक्लेव में घर दिया हुआ है, ऊपर से आप आँखें भी दिखाते हैं। मुझे लगता है एमल वली खान भी ये समझ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरह कि मेरा वोट बैंक मेरे हाथ से निकल गया है और उनकी पार्टी केपी में जो है वो एक सीट की पार्टी भी नहीं रही है। वो खुद बेचारे बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, वो एक सीट की पार्टी भी नहीं रही है। अब ये जो एक बहुत बड़ी पार्टी थी वो सुकड़ती एक उनके पास एक सीट भी नहीं रही है। अब वो अपना पॉलिटिकल रिवाइवल चाहते हैं, वो अपनी सियासत जिंदा करना चाहते हैं। उनका भी ये ख्याल है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को गाली निकालेंगे तो हमारी सियासत जिंदा हो जाएगी और वो चाहते ये हैं कि जब हम एस्टेब्लिशमेंट को गाली निकालें तो एस्टेब्लिशमेंट माइंड ना करे। एस्टेब्लिशमेंट हमारी मजबूरी समझे कि हमने अपने वोट बैंक को दोबारा रिवाइव करना है और दोबारा वोट बैंक रिवाइव करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को गाली निकालनी बहुत जरूरी है। लिहाजा आप हमें एस्टेब्लिशमेंट को गाली निकालने दें। लेकिन मैं नहीं समझता सिस्टम में कोई उनको इतनी इजाजत है कि एक दफा खाएं भी और घूरें भी। दो काम तो वो नहीं कर सकते, एक तो मेरा मतलब है मरात भी लें और ऊपर से घूरें भी। सवाल तो पूछना चाहती मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अमल वली खान साहब जो है वो रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं और सिस्टम से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने सिस्टम से बाहर निकलकर खेलना है तो जाएं केपी में खेलें,
मतलब वो पीटीआई की मुखालफत करने की बजाय फौज की मुखालफत करके कोई एंटी आर्मी वोट बैंक को अपने गिर्द इकट्ठा करना चाहते हैं। जैसे एक दौर में एएनपी ने एंटी पंजाब सियासत भी बहुत की है, फिर एंटी कालाबाग डैम सियासत बहुत अरसा की है, तो वो इस तरह के कॉर्नर स्टोन्स की सियासत करते रहे हैं। तो अब अहमद वली खान अपनी डूबती सियासत को एंटी आर्मी सियासत के जरिए जिंदा करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनके लिए उनकी बस गुजर गई है। वो भी ऐसे उनका हाल भी पीपल्स पार्टी वाला है। केपी के अवाम ने उनकी इस लड़ाई को नहीं मानना। सबको पता है कि वो हुकूमत की जो है मरात याफ्ता सेनेटर हैं, उनको हुकूमत ने जबरदस्ती बलूचिस्तान से जाकर सेनेटर बनवाया। उसके बाद अब वो मिनिस्टर इनक्लेव में रहते हैं, वो फौज के साथ मिलकर चलते हैं। तो मेरे ख्याल में वो भी पीपल्स पार्टी की तरह वो आम वोटर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा एंटी आर्मी हूँ, मैं बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट बैंक मेरे गिर्द इकट्ठे हो जाए। समझ आनी चाहिए, लोग बड़े सियाने हो गए हैं। एमल वली खान साहब भी शायद 70-80 की दिहाई में रह रहे हैं। उनको उनके बाप जिस दादा ने तो ये सियासत कर ली, उनकी नहीं चलनी। मुझे लगता है ये जेनजी के दौर में उनकी ये सियासत नहीं चलनी। मुजम्मिल साहब, जिस तरह भी आपने मिनिस्टर इनक्लेव का जिक्र किया है, तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके रिहाइश दी गई है मिनिस्टर इनक्लेव में? जी जी, वो मिनिस्टर तो नहीं है ना, ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। उनको तो मेरा मतलब है रिश्वत के तौर पर घर दिया गया है। अहमद वली खान के पास मिनिस्टर एक इनक्लेव में दानिशवार। रिश्वत का घर है, जो उन्हें सियासी रिश्वत के तौर पर दिया गया है। वो घर उनकी उनकी एंटाइटलमेंट नहीं है, उनका इस्तेकाक नहीं है। वो एक सियासी रिश्वत है जो उन्होंने ली हुई है। और अब हुकूमत का मौकफ है कि एक तरफ आप रिश्वत लेते भी हैं, ऊपर से आंखें भी दिखाते हैं। दो दो तो काम तो नहीं अलग चले। ऐलान, अलग ऐलान उन्होंने ये रिश्वत हाँ, ली। और फिर आगे तलाल चौधरी ने ये ट्वीट किया है। मैं को अपने पास से नहीं कह रहा कि वो मिनिस्टर इनक्लेव में रहते हैं, मैंने और लोगों से भी पूछा है, वो मिनिस्टर इनक्लेव में रहते हैं। भी क्यों रहते हैं मिनिस्टर इनक्लेव? आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करनी है, थड़े से शुरू करें। आप, मेरा मतलब है, एस्टेब्लिशमेंट के मरात याफ्ता होकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करेंगे तो कौन आप पे यकीन करेगा? मतलब ये किधर से लोगों को बेवकूफ बनाने चले हुए हैं? मुजम्मिल रातें साहब, एस्टेब्लिशमेंट के साथ और दिन मुखालफत। ठीक हो गया, आगे रात को एस्टेब्लिशमेंट के साथ, दिन में खिलाफ तकरीर समझ के कहते हैं कि मैं बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे सवाल करना चाहूंगी। इमरान यास खान की जानिब से कहा गया है कि कश्मीरियों ने जैसे कामयाबी हासिल की है, यही वो तरीका है कि जो बानी पीटीआई कहते थे। तो क्या इमरान रियाज अवाम को जत्थाबंद सियासत पर अब उकसा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आप ये समझें कि नेपाल में या श्रीलंका में या ढाका में लोग किसी सियासी पार्टी के तौर के लिए नहीं निकले। लोग अपने मसाइल के लिए निकले हैं। अवामी ये आज़ाद कश्मीर में भी वो किसी सियासी जमात को इक़्तिदार में लाने के लिए, किसी सियासतदान को जेल से छुड़ाने के लिए नहीं निकले। लोग अपने मसाइल के लिए तो ज़रूर निकलते हैं, लेकिन लोग किसी के लिए किराए के कातिल नहीं बनने को तैयार। पाकिस्तान की अवाम अगर तो पीटीआई समझते हैं ना कि लोग आकर उसको इक़्तिदार में ले आएँगे, तो मुझे नहीं लगता पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के लिए लोग सड़कों पर निकलेंगे। फिर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हालात में बहुत फ़र्क है। वहाँ एक बहुत ही नालायक हुकूमत मौजूद थी और उस नालायक हुकूमत ने हालात इतने ख़राब कर दिए, फिर वहाँ पे एक ऑपोज़िशन भी नहीं थी। पाकिस्तान में वाइब्रेंट ऑपोज़िशन है। लिहाज़ा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हालात में बहुत फ़र्क है। इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ ऐसा हो सके। और फिर मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जहाँ पर लोग निकले हैं वो किसी ख़ास सियासी जमात के लिए नहीं निकले हैं। लोग अपने किसी मसाइल के लिए तो निकल सकते हैं। बांग्लादेश में लोग कोटा सिस्टम के खिलाफ निकले। नेपाल में लोग जब इंटरनेट और पूरा सोशल मीडिया बंद हो गया तब लोग निकले। आज़ाद कश्मीर में लोग सेहत की सहूलियात या ये निकले। कोई किसी को इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं निकला किसी जगह भी। लिहाजा तहरीक इंसाफ ये सोचे ना कि उसके लिए लोग निकलेंगे, तो लोग किसी एक सियासी जमात के लिए नहीं निकलते। ये पोलराइज सोसाइटी है, लोग आपस में सियासी तौर पर तकसीम है। किसी एक नुक्ते पे सब इकट्ठे हो सकते हैं, किसी एक कॉमन ग्राउंड पे, लेकिन वो कॉमन ग्राउंड इमरान खान या तहरीक इंसाफ नहीं हो सकता। मुजम्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी, गजा अमन मुआहदे पर, अमन मंसूबे पर शहबाज गिल ने कहा है कि यहूदी एजेंट वाला, इसराइल वाला गड़ा जो ये होते थे कि जिसमें खान साहब गिरे, उसमें तो ये खुद गिर गए। अब सारी जिंदगी ये सफाइयां देते फिरेंगे। तो क्या पीटीआई कोई नया बयानिया मार्केट में लेके आ रही है?
मेरा ख्याल लेट हो गई, अब तो हमास ने भी इसको कबूल कर लिया ना। आप मेरी बात समझें, अब तो देखें हमास, पूरी मुस्लिम दुनिया, सब ने इस मुआहदे को कबूल कर लिया। मेरा ख्याल है पीटीआई का ख्याल था कि शायद हमास कबूल नहीं करेगी, तो वो इसको काफ़ी बेच लेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। देखो ना, डूबते को तिनके का सहारा, भूखे को चाहिए 2 रोटियाँ, पीटीआई को चाहिए कोई इश्यू, अपना तो कोई इश्यू उनके पास है नहीं। तो वो उनका ख्याल था कि हम इस पर फ़लस्तीन पर ही चला लेंगे रियासत, तो मेरे ख्याल में वो ये बस भी उनके हाथ से निकल गई है। क्योंकि टेक्निकल बात ये है कि हमास के कबूल करने के बाद देखिए ना, हमास ने पैलेस्टाइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत कबूल कर ली है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस कबूल कर ली हैं, खुद को गैर मुसल्लह होना कबूल कर लिया। हमास ने सारी यरगमाली छोड़ने पर मान गई है, हमास ने सब कुछ तस्लीम कर लिया है। तो अब मेरे ख्याल में ये इशू जो है ना पाकिस्तान के लिए नॉन इशू हो जाएगा। सर, आखिर में आपसे एक वीडियो के बारे में जानना चाहूंगी जो कि मोहित पीरजादा साहब की जानिब से रीट्वीट की गई है, आप ये नाज़रीन को बताएं। अच्छा, वो एक पुलिस वाले की ना पतलून के हवाले से लटकाई जा रही है। मेरे ख्याल में उन्होंने इसलिए रीट्वीट किया है कि 9 मई को हसन न्याजी ने एक कोर कमांडर की या एक फौजी की पतलून लहराई थी और उस पर उनको सजा हुई है। तो वो कह रहे हैं देखें, अब पुलिस वाले की पतलून का भी वही तकद्दुस होना चाहिए जो एक फौजी की पतलून का है। तो मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जितना तकद्दुस या जितना फौजी पतलून की अहमियत है, उतनी पुलिस के मोहित पतलून आपने की भी नई होनी। ले नहीं, नहीं तो फौजी भी ले सकता है, लेकिन पतलून लटकाना मेरे ख्याल में बराबर जुर्म होना चाहिए। हम्म। लेकिन मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन वहाँ पे बन गया है और जुडिशल कमीशन इस चीज़ को देखेगा। वहाँ सारे जराइम माफ नहीं हो गए, उस पर एक जुडिशल कमीशन बना है और वो जुडिशल कमीशन देखेगा कि किसने पतलून लहराई है। और मेरे ख्याल में इस तरह सरकारी लोगों की पतलूनें लहराने की हम तो हौसला अफजाई नहीं कर सकते। मोहित पीरजादा साहब ने अपनी तरफ से तंज किया है और हमने उनका ये तंज कबूल कर लिया। और एक एग्जाम्पल सेट की जाएगी वहां पर भी सजा देके, ताकि ये लोग ना। मुझे नहीं पता सजा की एग्जाम्पल सेट की जाएगी या नहीं की जाएगी। मेरा ये मुतालबा है कि बराबर होना चाहिए, बराबर पुलिस की होना। पतलून और फौजी की पतलून की बराबर इज्जत होनी चाहिए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।